So for the class 10th ICSE board, this is the first chapter in the maths GST and the exercise number 1. So let's start without being late. Let's start the exercise. Okay. What is the question number 1? Question number 1 is an article, page number is 15. An article is marked at rupees 15,000 dash 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 and dash 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 paid by consumer, up to paid by consumer. Okay, so it is very time taking, so I am not writing the full question. Okay, but the first and last the sentence is this. Okay, so what are the values given to us? Let's see. In the question number 1, an article is marked at rupees. So what I have taught to you, what? In the given question, find the buyers, total number of buyers, purchasers, which is given. So in the question 1, it is written, an article is marked rupees 15,000. A dealer sells it to consumer. Means a person, dealer, is selling to a consumer and making the profit 10% if the rate of GST this. Means here dealer is selling to a consumer only. Means one person is buyer, who is consumer. So for consumer. Okay, what I have taught to you in earlier classes, find the purchasers, find the number of buyers and generate the total bill. Okay, so for consumer, what is MRP? Rupees 15,000. And dealer is smart, he sells it to consumer at 10% profit. Okay, तो प्रॉफिट ले रहा है वो, प्रॉफिट परसेंट कितना है बेटा? 10% है. सो CP क्या बन जाएगी? MRP प्लस 10% ऑफ MRP. सॉल्व कर लीजिए. MRP मीन्स 15,000 और प्लस 15,000 into 10%. Okay, number of zeros 2 will be cancelled, then 15,000 and plus 1,500. Okay, so it will be 16,500 rupees. Okay, CP. GST rate is equal to 12%. Okay, then okay, and if in the given question, if there is no any information is given, either the sale is intrastate or interstate, then let's consider it intrastate. Okay, means within the state sale. So for intrastate sale, intra-state sale. Okay, GST will be divided into two equal half part, two equal halves. SGST, half SGST means 6% of the CP. 6% of CP equal to 6 by 100 into 16,500. Okay, 20 will be cancelled out. Then 165, 6 into 165. Okay, what will be value? 6 5 ja 30, 0, carry will be there, and 6 6 ja 36 and 3, 39, 3 will be there, and 6 1 ja 6 and 3, 9, rupees 990 SGST, and the same amount will be CGST. CGST will be rupees 990 also. So what will be the total GST? Total GST will be, total GST amount will be CGST plus SGST equal to 2 into 990, means 1920 rupees
0 2 9 जा 80 2 0 0 2 9 जा 18 1 2 9 जा 18 and 19 1980 total GST value is 1980. So total SP, total selling price will be CP plus GST. Okay, CP means 16,500 and plus total GST means 1980. It will be 080 95 14 1 carry and 61718 and 1 rupees 18,480. Okay, let's check 000 808 9 and 5 14 1 carry and 16718 and remaining what. तो टोटल एसपी वैल्यू विल बी दिस. सो क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि एक डीलर है वो कंज्यूमर को आर्टिकल अपना सेल कर रहा है. तो कंज्यूमर के लिए एमआरपी जो भी थी, इस स्मार्ट डीलर ने क्या किया, अपना 10% प्रॉफिट बनाकर फिर दोबारा उस पर एमआरपी लगा दी. मीन्स ओरिजिनल एमआरपी हटाकर उसने नई एमआरपी लगा दी. तो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी, वो 10% प्रॉफिट अगर शॉपकीपर बना रहा है, अगर डीलर बना रहा है तो 16,500 की बनी. और फिर उसी कॉस्ट प्राइस पे हमें जीएसटी लेनी है और 12% जीएसटी लेनी थी. इंटरस्टेट सेल अगर नहीं गिवन है तो इंटरस्टेट सेल हम कंसीडर करते हैं. तो एसजीएसटी सीजीएसटी हाफ हमने कर ली. 12% का 6% होता है. 6% क्या 990 आया एसजीएसटी, इतना ही आपका सीजीएसटी हो जाएगा. तो टोटल जीएसटी निकाल लिया 2 इंटू मीन्स सीजीएसटी प्लस जीएसटी करेंगे यानी कि 2 टाइम्स करना पड़ेगा. तो 1980 आ गया. तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया, मतलब कस्टमर को आखिर वो चीज़ कितने की पड़ी. जो चीज़ आपकी रियल में 60,500 पड़ रही थी, अगर उसमें अगर टैक्स इंक्लूड कर दे 1980 तो वो आ जाती है 18,480 रुपीज़ की. मतलब ये कस्टमर अगर जीएसटी ना पे करता तो भी कितने की पड़ रही थी 16,500 की. लेकर यही 12% जीएसटी इसी अमाउंट पर पे कर देगा तो 18,480 हो जाएगी. अब हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. एक चीज़ याद रखेंगे कि पूरा पैटर्न क्वेश्चन का हमारा यही रहने वाला है. पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में हम लोग को यही पैटर्न रखना है कि नंबर ऑफ़ बायर्स फाइंड करेंगे और उनका पूरा बिल जनरेट करेंगे. उसके बाद अपनी बुक उठाएंगे, बुक उठा के देखेंगे कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है एक्चुअली. चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा हुआ है, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि वो सेलिंग प्राइस बताइए जिसमें टैक्स नहीं लगा है. तो ये बताइए अगर कस्टमर ने अपना प्रॉफिट बना लिया था, डीलर ने अपनी प्रॉफिट जोड़ ली थी, तो कस्टमर के लिए पर्टिकुलर कितने की चीज़ पड़ रही थी वो विदाउट जीएसटी विदाउट टैक्स 16,500 पड़ रही थी. और उसके बाद अगर वो टैक्स लगा देता तो वो 18,000. तो पहले का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा रुपीज़ 16,500. ओके, एंड सेकेंड पार्ट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा पहला. सेकेंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर. तो कंज्यूमर कितना जीएसटी पे करा, तो टोटल जीएसटी वैल्यू भी निकाली थी मैंने. टोटल जीएसटी अमाउंट ये रुपीज़ 1980. चलिए रुपीज़ 1980 आपका लिख देते हैं. थर्ड आंसर आपका क्या पूछ रहा है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर कितना टोटल अमाउंट पे करता है फाइनल बिल पे इंक्लूडिंग जीएसटी. तो ये सीपी प्लस जीएसटी टोटल उसने कितना पे किया 18,480. तो टोटल कस्टमर कितना अमाउंट पे कर रहा है 18,480 रुपीज़. बच्चों याद रखिए कि जब आप जीएसटी चैप्टर या किसी भी चैप्टर का फाइनल आंसर आप लिखते हैं तो उस वक्त आप सिंबल, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई यूनिट लिख रहा हूँ तो न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, आपने पढ़ा ही है. तो ये रुपीज़ से सिंबल बनाना बहुत जरूरी है. अगर आपने ये रुपीज़ ना लिख करके सिर्फ ये छोड़ दिया तो ये पूरा आंसर गलत मान जाए, काट दिया जाएगा, आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. तो सबसे पहले तो फाइनल आंसर जो भी लिखे आप ब्लैक पेन से लिखें और रुपीज़ सिंबल जरूर लगाएं और लास्ट में यहाँ पर ऐसे आप एक बार सिंपल, और कोई आप इस पे काम नहीं करेंगे, सिंपल आप ANS लिख के छोड़ देंगे कि ये आपका फाइनल आंसर है. तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 ये था, जिसमें टोटल इन्फॉर्मेशन जो दी थी मैंने लिखा और प्रॉपरली आपको ऐसे ही आंसर लिखना है. चलिए नोट कीजिए पहले. चलिए नोट हो गया था. अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं बुक का। क्वेश्चन नंबर टू नहीं, अब 1 2 3 4 तो सेम है। चलिए आइए इस पे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, सेम पेज नंबर 15 पर ही है। क्या क्वेश्चन आपका लिखा? अ डीलर बाइस an article for rupees 6,000, okay, from wholesaler ये क्वेश्चन जाएगा और लास्ट में आएगा पेड बाय कंज्यूमर तक। ओके, लास्ट में आएगा पेड बाय कंज्यूमर पे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इतनी चीज़ लिखी है। चलिए हाँ, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों? मैंने आपको सिखाया था कि रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द नंबर ऑफ बायर्स परचेजर्स। ओके, राइट द नेम ऑफ देम। सो इन दिस क्वेश्चन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर यानी एक डीलर है, वो होलसेलर से खरीद रहा है। तो एक परचेजर तो मिल गया, कौन? हम उसके लिख लेंगे फॉर डीलर, यानी डीलर है, पहले खरीद रहा है होलसेलर से। चलिए, और इसके बाद द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। जब डीलर ये दोबारा सेल कर रहा है किसी कंज्यूमर को, मीन्स कंज्यूमर परचेज कर रहा है, तो देयर आर 2 बायर्स। फर्स्ट इज डीलर इज परचेजिंग फ्रॉम द होलसेलर एंड फॉर कंज्यूमर इज परचेजिंग फ्रॉम द डीलर। समझे बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि अपने क्वेश्चन देखिए, खरीदने वाले कितने हैं। तो हमारे क्वेश्चन में खरीदने वाले 2 लोग थे। एक तो कस्टमर खरीद रहा है डीलर से, और डीलर अपने शॉप पे माल कहाँ से खरीद के ला रहा है? किससे ला रहा है? खरीद के होलसेलर से ला रहा है। तो 2 लोग खरीदने वाले। अब दोनों लोग के लिए हमें क्या करना है? बिल जनरेट कर लेना है। आइए चलिए क्वेश्चन को डीप से पढ़ते हैं और सारी वैल्यूज नोट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। दिस इज द कॉमन पैटर्न फॉर एवरी क्वेश्चन in this exercise number 1 for the chapter GST. Okay, so let's see. For dealer, a dealer buys an article for rupees this from a wholesaler. तो चलिए सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस दे दिया कि डीलर कितने प्राइस पे खरीद रहा है? ₹6,000 पे होलसेलर से ले रहा है। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। ओके, तो होलसेलर ने इसको कोई अभी डिस्काउंट प्रॉफिट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, सीधे सीपी हमें पता है डायरेक्ट। यानी कि पहला क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे एमआरपी लिखते हैं, फिर डिस्काउंट या प्रॉफिट लिखते हैं, उसके बाद सीपी का नंबर आता है। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में होलसेलर से इन्हें कोई डिस्काउंट कुछ नहीं मिला है, इन्होंने अलग से कोई प्रॉफिट भी नहीं पाया है। तो जो भी है सीधे सीपी इनको बता दिया है कि डीलर के लिए सीपी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? ₹6,000, यानी 6,000 में इन्होंने होलसेलर से परचेज किया है। चलिए, सेल हमारे इंटरेस्ट रेट है, इंफॉर्मेशन मिल गई। सेल हमारे इंटरेस्ट रेट है, मीन्स क्या? विद इन द स्टेट। रेट ऑफ जीएसटी 18%। चलिए ठीक है, तो चलिए इनका बिल बना लेते हैं। जीएसटी रेट क्या है? जीएसटी रेट है आपका 18%, और सेल इंटरेस्ट रेट है, तो बेटा जीएसटी डिवाइड होगी इनटू हाफ इक्वल पार्ट्स। हाफ इज एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी एंड हाफ इज सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी। चलिए लेट्स डिवाइड करते हैं। 9% ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी मीन्स 9% ऑफ सीपी मीन्स 9/100, सीपी मीन्स 6,000। 2 0 will be cancel out, then 9 6 are 54 and 1 0 will be added, ₹540, and CGST will be the same amount, ₹540. Then total GST value will be, total GST amount, याद रखिए बच्चों कि ये जो इधर डीलर के लिए ये जो पहले परचेज कर रहा है, इसके लिए ये इनपुट एसजीएसटी कहलाएगी बच्चों, और ये भी इनपुट सीजीएसटी कहलाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 × 540, आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा 1080, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस इनको कितने की पड़ेगी चीज़, टोटल सीपी प्लस जीएसटी वैल्यू। तो सीपी कितनी थी बच्चों, 6000 नोट कर लिए बच्चों, और प्लस जीएसटी वैल्यू 1080। ये बच्चों कितने का पड़ा इनको जाके, 7080 रुपीज़ का। ओके, मतलब डीलर जो कि हमारा परचेजर है, फर्स्ट परचेजर है, डीलर जो कि खरीद रहा है होलसेलर से। याद रखिए, डीलर को होलसेलर से जो कॉस्ट प्राइस लगी 6000 की, ठीक है, फिर अब चूंकि ये लाया होगा तो बिल बनवा के लाया होगा, इसका मतलब क्या, ये क्या करेगा, 18% जीएसटी उस पर ऐड करके बिल बनवा के लाएगा। तो बिना जीएसटी के इसको पड़ रहा है 6000 का, और जीएसटी अगर 18% ऐड कर रहे हैं तो पड़ जा रहा है 7080 का। ये पड़ा है डीलर को खुद, मतलब ये डीलर ने क्या किया, होलसेलर से माल लेकर अपनी शॉप में रख लिया। अब उसको पड़ा है बिना जीएसटी के 6000 का, और जीएसटी के साथ 7080 यानी 7080 रुपीज़ का। चलिए आइए देखते हैं कि अब अगर ये डीलर कस्टमर को देता है तो जाहिर सी बात है, डीलर यहाँ पर शॉप पर अगर लेके कोई सामान खरीद के बैठा है तो बेचने के लिए बैठा है तो प्रॉफिट बनाएगा। तो देखते हैं कि ये डीलर जब कस्टमर को सेल करता है, बेचता है, तो कितना % प्रॉफिट लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। चलिए, तो क्या करेगा ये स्मार्टली, इनके लिए एमआरपी बना देगा ₹6000 की, कि चीज़ भाई 6000 की है, और चूंकि इसको प्रॉफिट भी लेना है 15%, तो प्रॉफिट 15% ऐड करेगा। तो जाके कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बन जाएगी, एमआरपी प्लस 15% ऑफ एमआरपी, ठीक है। कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, कि एमआरपी तो 6000 है, ये उसमें 15% बाहर ले रहा है, तो 6000 तो ये हो गया, प्लस 15/100 इंटू 6000, 20 विल बी कैंसिल आउट, 6000 प्लस 15 6 are 90 एंड 10 विल बी देयर, मीन्स 900। तो ये पड़ जाएगी इनको ₹6900 की कॉस्ट प्राइस। इंटरेस्ट रेट सेल थी, और जीएसटी रेट आपको पता ही है सेम, जीएसटी रेट कितना है 18%। तो इनको भी पड़ेगा, लेकिन इनको नाम दिया जाएगा आउटपुट एज जीएसटी। ओके, आउटपुट एज जीएसटी कितना हो जाएगा, 9% ऑफ सीपी। तो चलिए 9% ऑफ सीपी कर लेते हैं, 9/100 इंटू सीपी कितना है बेटा, 6900। ओके, 20 विल बी कैंसिल आउट, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 9 9 जा 81, 8 कैरी, और 9 6 जा 54। ओके, 9 9 जा 81, 1 लिख दिया, 8 कैरी कर दिया, 9 6 जा 54, 54 और 8, 54 और 8, 8 4 12, 62। ओके, ₹62 हो गया ये आपका आउटपुट एजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी लिख लेते हैं, आउटपुट सीजीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों, आउटपुट सीजीएसटी भी ₹621 हो जाएगा। तो टोटल जीएसटी निकाल लेते हैं, टोटल जीएसटी कितना आ रहा है बच्चों, तो 2 इंटू 621 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो टोटल जीएसटी आ रहा है ₹1242। तो टोटल एसपी कस्टमर को भाई वो चीज़ कितने की पड़ेगी, तो सीपी प्लस जीएसटी अमाउंट, तो ये हो जाएगा सीपी कितना था 6900 प्लस जीएसटी यानी 1242। ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 24 तो सिंपली आएगा, और 2 9 11 1 कैरी, 9 2 11 1 कैरी, एंड 6 1 7 एंड 1 8 रुपीज़ 8142। ये टोटल एसपी पड़ा कस्टमर को। मतलब बच्चों क्या समझा आपने, देखिए मैंने पूरी कैलकुलेशन आपके सामने की है। उसी कस्टमर को अगर डीलर 6000 एमआरपी बना के 15% का प्रॉफिट लेता है तो उसकी सीपी आ जाती है 6900। फिर उस पर 18% जीएसटी का रेट लगता है, चूँकि जीएसटी और एसजीएसटी दोनों हैं। जीएसटी आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेल होने की वजह से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। हाफ जाएगी 9% जाएगी स्टेट जीएसटी मीन्स एसजीएसटी, और 9% जाएगी आपकी सेंट्रल जीएसटी मीन्स सीजीएसटी। चलिए अब
जो भी ये जीएसटी रिसीव बाय कस्टमर होती है या पेड बाय कस्टमर होती है वो आउटपुट कहलाती है। तो मैंने इसलिए आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी लिखा है। दोनों इक्वल आती है, 621 आया, 621 ये भी आ गया, तो टोटल जीएसटी क्या हो गई, सम अप कर लेते हैं। एक्चुअली रियल में सम अप होता है एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, तो चूँकि सेम है तो मैंने ट्वाइसर का आंसर लिख दिया 1242। फिर टोटल एसपी निकालने के लिए मैंने सीपी प्लस जीएसटी वैल्यू ऐड किया और बिल आ गया 8142, मीन्स 8142। मतलब कस्टमर को देखिए, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन पूरी आपके सामने दी हुई है। इसमें सॉरी कैलकुलेशन आपको दिए कि डीलर को 6000 की चीज़ जीएसटी के बाद 7080 की, 7080 रुपये की, कस्टमर को वही 6000 की चीज़ 8142 की, मीन्स 8142 की पड़ी। अच्छा, मैंने कहा था कि दोनों का बिल जनरेट कर लेंगे, जैसा कि आपको मैंने बोला था, और बिल हमने बहुत गर्मी बच्चों, सॉरी। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर ऑफ़ परचेजर फाइंड कर लेंगे और उनका बिल जनरेट कर लेंगे। तो बच्चों मैंने पैटर्न फॉलो कर लिया है पूरी तरह से, इनका जो ट्रिक था मैंने फॉलो किया है। मैंने परचेजर देखा क्वेश्चन में, उनके बिल जनरेट कर लिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका एक पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न से सारा क्वेश्चन हिट हो जाता है। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है, ये मैं कहाँ पर लगा दूँ, तो मैं चलिए यहाँ पर करता हूँ, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो। फर्स्ट पार्ट दिख ही रहा होगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर। तो इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, तो डीलर कितना 540 रुपीज़ पे करता है। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा था कि अगर कभी भी आपसे जीएसटी अमाउंट कोई भी किसी भी तरह का, चाहे एसजीएसटी चाहे सीजीएसटी, अगर पेड बाय डीलर या शॉपकीपर पूछे, तो याद रखिए कि ये शॉपकीपर या डीलर पेबल होता ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि वो जो आउटपुट एसजीएसटी या सीजीएसटी होता है, हमेशा उसको माइनस कर लेते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपसे आ जाए कि एसजीएसटी पेड बाय डीलर या सीजीएसटी पेड बाय डीलर, अगर एसजीएसटी सीजीएसटी पेड बाय डीलर पूछे तो हमेशा आपको आउटपुट माइनस इनपुट करना है। ये याद रखिए आप लोग। बेसिकली इसका मोटा मोटा रीज़न क्या है, इसका मोटा मोटा रीज़न ये है कि ये डीलर है, वो कोई चीज़ कंज्यूम करता नहीं है, तो जीएसटी पेबल बाय होती किसकी है, वो पेबल बाय कस्टमर होती है। जब डीलर ने ये बिल अमाउंट बनाया तो इस जीएसटी पैसा रखा किसने, डीलर ने। लेकिन ये जो कस्टमर से जीएसटी रिसीव की जाती है, जीएसटी का सारा पैसा होता है गवर्नमेंट का। लेकिन ये डीलर भाई साहब कहते हैं कि भाई देखो, मैं भी तो जीएसटी पहले पे करके आ रहा हूँ, पहले मैंने खुद ही 540 रुपीज़ एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को दे ही रखा है। तो वो क्या कहता है डीलर कि भाई देखो, मेरे पास गवर्नमेंट का कितना पैसा बचा है, देखो मैंने कस्टमर से एसजीएसटी अमाउंट जो लिया है 621, ठीक है, कस्टमर से इतना लिए, इतना गवर्नमेंट का बनता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले से 540 पे कर रखा है। तो गवर्नमेंट का पैसा मेरे पास कितना और बचा, जितना बचता है वो मैं और पे कर दूंगा गवर्नमेंट को। तो क्या करता है, वो कहता है भैया 621 में से माइनस कर लो 540 को, देखो क्या आता है। तो 621 माइनस कर लिया 540 को, कितना आ जाएगा, 11 1 माइनस 0 1 पूरा बचेगा, 12 माइनस 4 8 बचेगा। तो कह रहा है 81 रुपीज़ मेरे पास और है, तो मैं ये और पे कर दूंगा। इसीलिए कभी भी अगर आपको एसजीएसटी अमाउंट या सीजीएसटी अमाउंट पे करने के लिए आए कि भाई डीलर पेड बाय डीलर बताओ, तो पेड बाय डीलर के लिए आउटपुट माइनस इनपुट करना पड़ता है, सिंपल। तो कर लीजिए, कितना आया, ₹81 सेकेंड पार्ट। तो दोनों होगा आंसर 81 और रुपीज़ लगा लेंगे क्योंकि फाइनल आंसर हम छोड़ा। फाइनल आंसर जब भी लिखेंगे बच्चों, तो अपने आंसर में आप रुपीज़ का सिंबल लगा के आंसर लिखेंगे। तो इनपुट CGST and input SGST paid by dealer। नहीं, एक्चुअली इन्होंने इनपुट सीधे सीधे पूछा है ना, तो इनपुट अगर पूछा है तो इनपुट तो हम बता ही देंगे। हाँ, अगर पेड टू द गवर्नमेंट आता तो ये नहीं बताते, लेकिन इन्होंने इनपुट पूछा है, तो अगर इनपुट नाम लिया है तो इनपुट जो हमने पे किया वही बताएंगे। इनपुट अमाउंट कितना आ रहा बच्चों, इनपुट SGST इनपुट CGST। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे इसमें नाम दिया है कि इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर। तो जब इनपुट सीजीएसटी या इनपुट आउट जीएसटी सीधे सीधे नाम ले रहा है तो आपको सीधे सीधे आंसर देना है। अगर ये कहता है कि एसजीएसटी अमाउंट एंड सीजीएसटी अमाउंट पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, तो आपको ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है इनपुट यानी कि ड्यूरिंग परचेज हाउ मच ही पेड ऑलरेडी, तो यू हैव टू टेल द राइट आंसर, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी ₹540। क्लियर,
सेकंड पार्ट, अभी मैच भी करेंगे, आंसर शीट से चलिए करते हैं। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर। अब ये देखिए आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय डीलर, तो डीलर ने कितना आउटपुट SGST और CGST कलेक्ट किया, तो डीलर ने आउटपुट SGST और आउटपुट CGST तो इतना ही कलेक्ट किया। डीलर ने कितना कलेक्ट किया, ₹621 एंड ₹621। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर। अच्छा नेट देखिए, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, नेट CGST एंड नेट SGST पेड बाय डीलर। तो डीलर कितना CGST है, SGST नेट पेड कर, नेट का मतलब क्या होता है, फाइनल। तो डीलर क्यों पे करेगा, डीलर नहीं पे करेगा क्योंकि वो तो कंज्यूमर, तो कंज्यूम करने वाला तो कंज्यूमर है। तो फाइनल अगर नेट आपको निकालना है तो वही बात है जो मैंने सिखाया था, नेट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा आउटपुट माइनस इनपुट, वही ₹81। तो सिंपल ₹81 हो जाएगा दोनों जो। नेट SGST एंड नेट, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर, डीलर 81 पे करेगा। द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना, जो 6000 प्लस GST अमाउंट मीन्स 8142। तो फाइनल आंसर इज ₹8142। ये आप ऐसे कर देंगे और आंसर कर देंगे। ओके बच्चों, नोट कीजिए इसको, नोट करिए।